सोचो, जो एक वैश्या है, जब वो गलत काम करती हुई पकड़ी गई, जब ये धार्मिक फरीसी और सदूसी उसको एक वैश्या देखते हैं, वहां पे यीशु उसको एक बेटी की तरह देखता है. And when this woman who's a prostitute, who's seen as a prostitute by the religious leaders, but Jesus sees her as a daughter. इसीलिए हमारी एक प्रार्थना होनी ये भी बहुत जरूरी है कि प्रभु मुझे रिलीजियस सिस्टम से आजाद कर, This is कि मैं why उस पिता को जान सकूं वो सच में कैसा है. one of our prayers that's very important for us to do is, Lord, set us free from that religious system that I could truly know the Father, how He is. Okay, let's just go to the word. Hallelujah. Are you ready for the word? तैयार हैं वचन के लिए? Okay, so the Bible says in John 1:1, यूहन्ना 1:1 में, आदि में क्या था? In the beginning was the Word. यानी जब सृष्टि नहीं हुई थी, So when there was no creation, जब सूरज चांद सितारे when the कुछ नहीं था, sun, moon and stars didn't exist, जब स्वर्गदूत नहीं थे, when there were no angels, जब स्वर्ग नहीं था, when there was no जब कुछ heaven, नहीं था, when there was nothing, तो वचन था. the Word existed. The Word was there. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वचन अजन्मा है. In the beginning was the Word, and the Word was with God. That means the Word was not born. Word is uncreated. वो रचा नहीं गया. There was a time when God created angels. They are created beings. एक समय था जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, वो रचे गए प्राणी हैं. There's a time when God created heavens and the earth, Bible tells us. एक समय है जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, बाइबल बताती But the है. word, the Bible never says, in the beginning God created word. No, in the beginning was the word. When there was nothing else, there was the word. लेकिन वचन के लिए बाइबल ऐसा नहीं कहती कि परमेश्वर ने वचन को बनाया. जब आदि में परमेश्वर था, उसके साथ वचन था. इसीलिए अगर सत्य को जानना है तो ईसाइयत के रीति रिवाजों से निकलकर जो वचन है उसमें हमें जाना है, to the purity of God's word. So if you want to know Him, you have to come out of the traditions of Christianity and go into the pure word. उसके पवित्र वचन में जाना होगा. Amen. सोचो इस बात को. Think about this. ये फरीसी यीशु के पास जब उस स्त्री को ले गए तो बोला, व्यवस्था में लिखा है. They are pointing the word to the word. When these Pharisees brought this adulterous woman to Jesus, they are saying this is written in the law. वो वचन जो है उसको वचन के बारे में बता रहे हैं. Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा. They were claiming the written word to the living word, but they themselves had no revelation of the word. वो लिखित वचन के बारे में जीवित वचन को बता रहे थे, पर खुद उनके अंदर वचन का कोई प्रकाशन नहीं था. Just because somebody quotes a scripture doesn't mean they have the revelation. सिर्फ इसीलिए कि कोई एक वचन बोल के आपको बता सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास प्रकाशन भी है उस वचन का. इसीलिए आधे मसीहों ने एक दूसरे को लहूलियान तो बाइबल मार मार के करा हुआ है. That's why half the Christians have hurt other Christians using the word, using the Bible. This was given to build lives. ये जीवनों को बढ़ाने के लिए मिला था. उसका वचन जीवन देने के लिए है. His word is for giving life. मगर अगर पिता को नहीं जानते तो इसी जीवित वचन को लेकर
हम एक दूसरे को मारने पे चले जाएंगे, But if you हम एक don't- दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे. But if you don't know the Father, you will take the same word and become enemies of one another, go to kill them with the word. हाँ, अरे यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो. Jesus said, love your enemies. So now I'm coming to the revelation. Are you ready? तो अब मैं प्रकाशन पर आ रहा हूँ, तैयार हो? So in the beginning was the word. आदि में वचन था, The word was with God. वचन परमेश्वर के साथ The था, word was God. और वचन ही परमेश्वर था. वचन परमेश्वर है. The word is God. मेरे पीछे बोलो, वचन Say this with me. परमेश्वर है. The word is God. सो जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं किसको ग्रहण करता हूं? So when I receive the word, whom do I receive? जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूं. जब मैं वचन को सुनता हूं तो मैं परमेश्वर को सुनता हूं. जब मैं वचन को रिलीज करता हूं किसी सिचुएशन में तो मैं परमेश्वर को सिचुएशन में रिलीज करता हूं. So when I hear the word, I hear God. When I release the word, I release God in that situation. I release God means I allow him to move. कई लोग बोलेंगे, who are you to release God? मैं परमेश्वर को उस परिस्थिति में काम कर हस्तक्षेप करने के लिए विनती करता हूं उसमें. Are you with me? So when I fellowship with the word, जब मैं वचन के साथ संगति करता हूं, I fellowship with God. मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं. When I meditate on the word, जब मैं वचन पर मनन करता हूं, I meditate on God. मैं परमेश्वर पर मनन करता हूं. The more word which is revealed that I know, the more I know the Father. जितना वचन का भेद मेरे ऊपर प्रकाशित होगा, उतना ज्यादा मैं पिता को जानता हूं. केवल लिखित वचन नहीं, Not just the written word, लिखित वचन जिसके ऊपर आत्मा ने उसको जीवन दिया है. the written word upon which the Spirit has given life. क्योंकि भूलना मत कि यीशु के पास भी शैतान वचन को लेकर आया. Because the devil brought the word to Jesus. तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है. And Jesus replied and said, this also is written. Okay? The unfolding of your word releases light. अब उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है. That means I can read the word with my preconceived ideas, with the religious teaching, and I would never know who the Father is. इसका मतलब मैं वचन को अपनी धार्मिक बुद्धि से या जो पहले से ज्ञान मुझे है उसके अनुसार पढ़ सकता हूं और उससे कभी नहीं जान पाऊंगा कि पिता कौन है. Why are there so many denominations and fights today? Because of the word. आज क्यों इतने सारे विभाजन हैं मसीहत में और इतना लड़ाई क्यों है? वचन के कारण. Why are so many people fighting today? लोग क्यों लड़ रहे हैं आज? If we do not know the Father, अगर हम पिता को नहीं जानते, we will use this written word तो हम इस लिखित वचन का इस्तेमाल करेंगे and become a Pharisee. और फरीसी बन जाएंगे.
जब मैं जहाँ कहीं जाता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं. When I go to different places, I meet many people who say, we want to grow spiritually. हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं. हाउ कैन वी ग्रो स्पिरिचुअली? कैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ें, लोग पूछते हैं. लेट्स सी द स्क्रिप्चर. ये ऑलराइट, वचन देखते हैं. 1 Peter 2:2. पहला पत्रस 2 उसका 2. As newborn babes, नए जन्मे हुए बच्चों के समान desire the pure milk of the word, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, that you may grow thereby. ताकि उसके द्वारा बढ़ते चले जाओ. नए जन्मे हुए बच्चों के समान. Like न्यू बॉर्न बेबीज. कितने यहाँ पे माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं? How many parents are here with little And you kids? remember when your kids were infants and आपको याद होगा आपके बच्चे जब छोटे थे, दूध पीते थे. they would drink milk. कितने लोग यहाँ पर आत्मिक रीति मैं आपको एक बात बताऊं, Let me tell you. क्यों मैं कह रहा हूँ हमें ईसाइयत से बाहर आना है? Why am I saying we have to come out of Christianity? क्योंकि कई ईसाई टिक करने के लिए संडे को चर्च में आते हैं. Because- उन्हें कोई बोला यार ग्रो व्रो छोड़ो, हमने अपनी रीति रिवाज पूरा कर दिया संडे को आकर. Because some Christians, they come to church for the tradition's sake, that we check marked going to church on Sunday. क्या करना पिता को जान के? What will we do ठीक है, सर. knowing the Father? It's okay. अपनी दाल रोटी बढ़िया चलनी चाहिए बस. We are getting good food, that's all. Enough. Only that person grows in the kingdom who really wants to grow. केवल वही लोग बढ़ते हैं राज्य में जो सच में बढ़ना चाहते हैं. आपकी आत्मिक उन्नति वहीं तक होगी जितनी आप चाहते हो. Your spiritual growth will only happen to the limit to which you want to grow. जो माँ हैं यहाँ पर वो जानती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या रहे हैं. आप जानते हो जब आपके छोटे बच्चे हुए, Mothers who've had infants and they've grown, or those who have infants know. वो जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसको एक टाइम लगता है, माँ वो लैच करने में समय लगता है. सीखता है बच्चा कि दूध अपनी माँ से वो सक कर सके. A newborn child learns to latch onto their mother so they can drink milk. पर आप जानते हैं बॉटल अगर आप दे दो बच्चे को नए जन, वो इजी है. You know, if you give a bottle to a newborn, it's easy for them. और कई ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको बॉटल दे दी जाती है, वो कभी माँ का दूध नहीं पी पाते. And there are some kids to whom, if the bottle is given, they are never able to latch, never able to drink milk from their mother. मगर माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए. But a mother's milk has those antibodies that the child needs to fight many sicknesses. जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, The mother that gave birth to that child, उसी माँ के अंदर से उस बच्चे के लिए खाना भी बन रहा है. from that mother, the food for that child is being अभी prepared. क्या होता है, लोग प्रभु में आते हैं, People come to the Lord, ये पिक्चर देखो, watch this movie, ये बुक पढ़ लो. read this book. अरे उसको बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसको वचन की जरूरत है. किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, अभी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है. उसको प्योर अनएडल्ट्रेटेड दूध की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, और उससे उसकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी. As a newborn baby needs that milk from his mother, a newborn believer needs the word, the pure word of God, not a picture, not YouTube, not a movie, but the pure word of God. Amen.